Who will define current liabilities and current asset as per our 11th class definition? Yes, students. Very easy. Liabilities which are to be payable within a period of 1 year or less than 1 year. अब definition change है. All those liabilities which are to be paid within a period of 1 year, that is 12 months, or within the period of operating cycle. And you know, operating cycle, मैं अभी meaning भी बताती हूँ operating cycle का. Sometimes the operating cycle can even be of 18 months. Sometimes it can be of 24 months. It means कि current liability की तो definition change ही हो गई. जब ऑपरेटिंग साइकिल मेरा 24 महीने का है, मींस 2 साल के बीच बीच में जो लायबिलिटी पे होगी वो भी करंट लायबिलिटी होगी. सो हियर यू नीड टू डिस्टिंग्विश. Whenever he will be talking about operating cycle in the question, you need to refer the definition given in your Companies Act 2013. So we will be reading the page whereby he is mentioning the operating cycle. Before reading from the book, let me tell you what actually operating cycle is. For the manufacturing concerns, operating cycle means the time period which the company uses to purchase the raw material till its final sale. Purchase जिस दिन आपने raw material किया उस दिन से लेके purchase के बाद क्या होगी, प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, सेमी फिनिश गुड्स बनेंगी, फिनिश गुड्स बनेंगी, आप उसकी उधार पे क्रेडिट पे सेल करोगे, वो डेटर्स बनेंगे और फिर वो मनी में कन्वर्ट होगा. फिर जो पैसा आएगा आप दोबारा रॉ मटेरियल क्या करोगे, परचेज करोगे फॉर नेक्स्ट प्रोडक्शन. So many days and so many months are being consumed herein. That time period when is to be added, that is to be named as operating cycle. Done. So it is not usually being happen that operating cycle is going to be 1 year or less than 1 year. It can be even more than 1 year. Okay. So let me explain this topic. In the next period, I will bring the sample paper and then I will discuss how he has asked the question relating to operating cycle, right? Let's see the operating cycle. Tell me the page number if you have opened that page. 1.17. Everybody will open that page. Yes, students. Operating cycle means वो किसी भी पेज, किसी भी टर्म पे क्वेश्चन पूछता है. We don't afford to leave a single line. We don't afford to leave a single paragraph. ठीक है, for our exams. You need to be alert enough. You need to be conscious enough when you prepare for your exam, right? So operating cycle मेरे को लगा इसके ऊपर नहीं पूछेगा why to elaborate it, but he has asked. Done. The term operating cycle is defined under the same schedule of 3 Companies Act 2013. It is a time between acquisition of an asset for processing and its realization into cash and cash equivalent. मैंने सारा कुछ तो बता दिया. जिस दिन आपने वो पर्टिकुलर एसेट खरीदा, मैंने एसेट का नाम स्टॉक रख दिया भाई. स्टॉक इज माय एसेट और मैंने उसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट करी. प्रोसेसिंग करने के बाद एक टाइम ऐसा आया जब उसकी फाइनल सेल हो गई. तो इट इज नॉट एसेंशियल दैट यू आर गोइंग टू सेल द गुड्स एवरी टाइम ऑन कैश. समटाइम्स यू सेल देम ऑन क्रेडिट, और क्रेडिट जब होता है तो वो डेटर्स बनते हैं, डेटर्स जब होते हैं तो वो बीआर बनते हैं, बीआर फिर मैच्योर होते हैं तो कैश में कन्वर्ट होते हैं. सो यू कैन वेल इमेजिन कितना लंबा टेन्योर है. इस सारे टेन्योर को जब ऐड कर दिया जाता है तो हमारा क्या बनता है, ऑपरेटिंग साइकिल. डन. ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी आइडेंटिफाइड, can't be identified. It is assumed to be 12 months. कहता वैसे तो हम आइडेंटिफाई इसको नहीं कर सकते एज सच, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि इट इज गोइंग टू बी 12 months. But sometimes some authors or some accountants they assume it is going to be 12 months, but every time it is not like so. Done. आगे चलते हैं. Operating cycle means, पैराग्राफ देखो. Operating cycle means the time taken by company to acquire an asset for processing and converting into cash and cash equivalent. अब एग्जांपल मेरे वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की पढ़ो. In a manufacturing company, operating cycle for the product will be the time taken to purchase raw material. Done. जिस दिन आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसकी प्रोसेसिंग हुई, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, उसे बेचा और फिर वो कैश में कन्वर्ट हुआ. जितना मान लो रॉ मटेरियल खरीद के लेके आए, उसकी प्रोसेसिंग में ही 2 महीने लग गए. ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद वो फिनिश गुड्स में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस ही है, इसमें 3 महीने लग गए. फिनिश गुड्स भी अभी तक नहीं बनी, ये सेमी फिनिश गुड्स ही हैं, इसमें 1 महीना लग गया. कई बार क्या होता है, कुछ फिनिशिंग आप बाहर से करवाते हो, you just check the business process outsourcing, सारा काम फिनिशिंग का आप खुद नहीं करते. You can have the example of your automobile companies.
ठीक है, कुछ स्पेयर पार्ट्स बाहर से हम लोग परचेज कर रहे हैं, उसे असेंबल करके हम लोग गाड़ी को पूरा क्या कर रहे हैं, फिनिशिंग टच दे रहे हैं. So it is not going to happen that every activity is being done at your own plant. So it may take time. जैसे फिनिश गुड्स हुई, सेमी फिनिश को फिनिश में कन्वर्ट करने में 2 महीने लगे. These all are in months. ठीक, फिर गोडाउन में सामान पड़ा रहा 1 महीना, फिर हमारा वो सामान बिका, ये फाइनल सेल हुई. कुछ सामान हमारा उधार पे बिका, वो डेटर्स बने, डेटर्स ने बीआर एक्सेप्ट किया और फिर वो कैश में कन्वर्ट हुए. फॉर एग्जांपल दिस इज 2 and 3, so you can add up. These all months are to be added and you can have a clear cut idea that this is going to be my operating cycle. Done. अब कोविड के टाइम पे जब सेल हुई नहीं तो गोडाउन में 5-6 महीने सामान पड़ा रहा. सो ऑपरेटिंग साइकिल ऑब्वियसली उन कंपनीज का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. यू आर गेटिंग मी? प्रोडक्शन ही नहीं हुई, इट मींस कि वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में पड़ा रहा. कईयों ने प्रोडक्शन करी तो बिका नहीं, तो वो गोडाउन में ही पड़ा रहा. तो जितनी फास्ट मूविंग गुड्स है उतना ऑपरेटिंग साइकिल का टेन्योर कम होगा. फास्ट मूविंग गुड्स, यू अंडरस्टैंड? आमतौर पे फास्ट मूविंग गुड्स कौन सी होती हैं? विच आर ऑफ एसेंशियल नेचर, विच आर ऑफ नेसेसिटी टाइप्स. वो फास्ट मूविंग गुड्स हैं या कंज्यूमर गुड्स हैं, उनका ऑपरेटिंग साइकिल आमतौर पे कम है. बाकी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गुड्स. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट दिस इज गोइंग टू बी द ऑपरेटिंग साइकिल फॉर सच टाइप ऑफ गुड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. इट्स नॉट लाइक दिस. It varies from company to company. In case operating cycle can't be identified, कहता अगर ऑपरेटिंग साइकिल आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, अदरवाइज इट इज एन इजी जॉब. लेकिन अगर ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे अंडरलाइन करो और स्टार बना के रखो. इफ यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई योर ऑपरेटिंग साइकिल, देन assume it as 12 months. Otherwise you need to compute it, you need to calculate it, and it's not going to be a tough job. You can have the tenure in front of you. आप उतने मंथ्स को ऐड करते जाना and you can have the idea of your operating cycle. The effect of operating cycle is that in case operating cycle is of a period more than 12 months, all the liabilities, अब definition है. अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल इट इज 18 months, all liabilities of that business are classified or shown as current liability if they are due for settlement within 18 months from the date of balance. तो मेरा 12 महीने वाला क्राइटेरिया क्या हो गया? स्क्रैप. ठीक है, all the liabilities which are to be paid within a period of 12 months or within a period of operating cycle, whichever is going to be applied. अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपके लिए कैलकुलेट करना पॉसिबल है तो ऑपरेटिंग साइकिल के बीच बीच जो लायबिलिटीज पे होंगी, चाहे वो ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा ही क्यों ना हो, इवन देन आई विल बी कॉलिंग दैट लायबिलिटीज एज माय. सिमिलरली करंट एसेट की डेफिनेशन क्या होगी? ऑल दोस एसेट्स which are having the life of 12 months or within a period of operating cycle. If the operating cycle is more than 12 months, then that assets are to be named as what? Current asset. So criteria is clear. कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. मेरी तरह ऑपरेटिंग साइकिल का सर्कल बनाया, सारे मंथ्स को ऐड कर लिया, डन. देखो जरा एग्जांपल्स दे रखी हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, अब ज्यादा एलेबोरेट नहीं करना हमने. ट्रेड पेबल्स, ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने है और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट 8 months है. देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा, 8 महीने के बीच बीच मैंने पेमेंट करनी है, एंड दिस टाइम ऑपरेटिंग साइकिल इज लेस देन 12 months. करंट लायबिलिटी है. ठीक है, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया? 8 महीने के बीच बीच पेमेंट करेंगे, और ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? 10 महीने का ही है, लेस देन 12 months है. एक्सप्लेनेशन पढ़ो. As the expected payment period is less than the period of operating cycle and this is within 12 months from the date of balance sheet, so this is current liability. अगला पढ़ो. फिर से ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने और एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड 12 है. अब कौन सी डेफिनेशन लगेगी? पुरानी वाली. All those liabilities which are to be payable within a period of 12 months or within the period of operating cycle, if operating cycle is greater than that. ठीक है, तो वो करंट लायबिलिटीज हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है? अगेन द ऑपरेटिंग साइकिल इज लेस देन योर, दोनों केस हैं. पहले केस में एक्सपेक्टेड पीरियड वाज लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल, बट ऑपरेटिंग साइकिल इन इटसेल्फ वाज लेस देन 12 months, तो भी वो करंट लायबिलिटी है. अब एक्सपेक्टेड पीरियड कितना है? एक्सपेक्टेड पीरियड कितना है? 12 months, और ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? अब कौन सी डेफिनेशन लगेगी? पुरानी वाली, तो भी ये करंट लायबिलिटी है. अगला पढ़ो, अगले पॉइंट से आपको ज्यादा क्लियर होगा. ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है और एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड 15 महीने का है,
ऑपरेटिंग साइकिल इज लेस देन द एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी बनेगा। क्यों? अगर ऑपरेटिंग साइकिल ग्रेटर होता तो ये करंट लायबिलिटी होती। मान लो आपका एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड 15 महीने है और ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने होता तो ये करंट लायबिलिटी होता। अब फिर से यहाँ पे पुरानी डेफिनेशन लगी। सो व्हेनेवर द ऑपरेटिंग साइकिल इज लेस देन द एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड, यू ऑलवेज अप्लाई योर ओल्ड डेफिनेशन. If the operating cycle is greater than the expected period of payment, then you will be applying the new definition and you will be referring the operating cycle in that case. So in third case, it is going to be your current liability. Such type of identification he has asked in the paper. He gave you the time period for BP payment, I think, or TP payment, and he asked you identify it. आप इसे current liability show करोगे कि non current liability show करोगे. So like that way he has asked in your sample question paper. अगला बताओ. अब बताओ मेरे वाला फॉर्मूला लगाओ. एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड 15 महीने है एंड ऑपरेटिंग साइकिल इज ग्रेटर देन दैट, सो आई विल बी अप्लाइंग द न्यू डेफिनेशन. ऑल लायबिलिटीज व्हिच आर टू बी पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, दो ऑपरेटिंग साइकिल इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स, यू नो, पुरानी डेफिनेशन स्क्रैप्ड. All those liabilities which are to be payable within a period of operating cycle are to be named as current liability. So fourth point में it is current liability. Is it sure with everyone? Are you getting it? चलिए ये एग्जाम्पल करके जानिए पेपर के लिए. This is a part of your syllabus, right? Earlier we skipped it. अगला बताओ. अगला बताओ. क्यों नॉन करंट? Because operating cycle is less than the expected period of payment. So here we are applying our old definition. As it is beyond the period of 12 months, so it is going to be your non-current liability. So this was the topic which we left earlier. So now we are going to start with our second part. Vertical format में balance sheet बना रहे हैं. We have arrived at the second part of our balance sheet, which we call assets. ये भी थोड़ा सा मैंने करवा दिया था कल, day before yesterday. I will begin from the scratch only. Second part, assets. Note number, current year, previous year. So this is our second part. रोमन में लिखता है वो इसको. Second part हमारा क्या है? Assets है. सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? नॉन करंट एसेट्स. देखो जरा पेज टर्न करो. नॉन करंट एसेट is my main subhead. So no, it's not subhead, it is main head. This is first main head, non-current assets. Non-current assets में 4 कैटेगरीज लिखी थी. प्रॉपर्टी, प्लांट, ऐसे लिखा है ना कुछ? मेरे से पूछ लो, टाइम बताती हूँ. Yes, on page number 10 minutes. Non-current assets, page number 1.30, open that page. Property 1.30 पेज नंबर निकालिए सभी लोग. वहां पे टिक लगाइए. This page is again the part of your syllabus, right? Property, plant and equipment. अब इसी की डिटेल पढ़ेंगे. बिल्कुल नीचे फोर्थ आइटम के बाद डिटेल. टेंजिबल एसेट्स, बोलो कौन कौन से टेंजिबल एसेट्स होंगे? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग. अगर वो पेपर में पूछता है तो आप क्या लिखोगे? मेन हेड इज नॉन करंट एसेट एंड सब हेड इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसमें भी टेंजिबल. ठीक. फिर हमारे पास क्या है? इसमें इनटेंजिबल एसेट भी है. उसमें भी करवाया था गुडविल, पेटेंट राइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इवन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दैट इज इनटेंजिबल एसेट. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी करवाया था. क्या था मीनिंग इसका? बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन और योर रिसर्च वर्क इज अंडर प्रोग्रेस, that is capital work in progress. Your research work under progress is to be termed as intangible asset under development. कोई फॉर्मूला, कोई रिसर्च, कोई रेसिपी, अभी आप रिसर्चर से रिसर्च करवा रहे हैं, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, so that is to be categorized under fourth part, intangible asset under development. So after property, plant, etc., I have under my non-current asset, that is non-current investment, CI. non-current investment क्या क्या हो सकता है? आपने किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हो सकते हैं,
आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हो सकते हैं, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो सकता है, आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे हो सकते हैं, दैट ऑल आर योर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में डिटेल है भाई, पेज नंबर 1.31 पढ़ो, जो मैंने बताया वही है सब कुछ। इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी शेयर्स, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब शेयर्स है, बंडल ऑफ शेयर्स आर नेम्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स। सो व्हेन यू इशू योर शेयर्स टू द पब्लिक, वो आपकी लायबिलिटी है। When you invest in some other company's share, like my company is a textile company and I bought the shares of Tata Steel, so that shares of Tata Steel will be my non-current investment. Am I clear with everyone? Done? Then अगर इक्विटी नहीं खरीदे तो प्रेफरेंस खरीदे हैं, वो भी आपकी क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। आपने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, आप किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन थर्ड वी हैव करवाया हुआ है डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट क्या मतलब था, एनीबॉडी? 43 हाँ जी, कंबाइंड, बिल्कुल ठीक है। प्रीपेड टैक्स, व्हेन यू पे टैक्स इन एडवांस, एवरी टाइम यू पे टैक्स इन एडवांस, राइट, and your estimated tax is more than your actual tax. In that case we call it deferred tax asset. Again I am repeating the same sentence, it's not a part of our syllabus, इसकी कोई भी bifurcation आगे नहीं है। आगे चलते हैं। long term loans and advances, if you took a loan that is your liability, if you gave loan that is your asset. So this is what long term loans and advances. और इसके अलावा हमारे पास है other non current assets. Turn the page. other non current assets, 2 पॉइंट है, पढ़ो। लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, अगर टीपी आपकी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो सकती है तो व्हाई नॉट टीआर इज योर अदर लॉन्ग टर्म एसेट। इफ ट्रेड रिसीवेबल्स आर टू बी पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज टू बी नेम्ड एज मोर देन, बोलना चाहिए था ना मेरे को, मोर देन द पीरियड ऑफ 12 months और more than the period of operating cycle, then it will be named as non current asset, और उसकी सब कैटेगरी क्या होगी, other long term assets. Done? others में क्या लिखा है, पढ़ना कुछ दिया? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, अंडरलाइन करो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। वैसे तो होता ये है कि इंश्योरेंस क्लेम विद इन 2 और 3 months हमें मिल जाता है, तो आमतौर पे ये करंट एसेट ही होता है, लेकिन अगर डिले हो गया और 12 महीने के ज्यादा लंबे टाइम के बाद हमें मिलने वाला है, तो उस केस में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल को भी आप अदर्स लॉन्ग टर्म एसेट में डाल सकते हो। सो दिस वाज योर नॉन करंट एसेट फर्स्ट पार्ट। नाउ वी अराइव्ड एट करंट एसेट्स, सी फ्रॉम योर बुक। करंट एसेट्स, नंबर 1 करंट इन्वेस्टमेंट। नीचे अमितोज, you need to be quiet. You firstly sit straight. Sit straight, no arguments. Read first point. Read first point.